We are proud to announce that our visionary principal ma'am has been conferred Guru Dronacharya Award by SDGI Global University, and Miss Ayushi Awasthi and Miss Deepika Verma have been awarded Best Teacher Award by SDGI Global University. I'm sure this report has made everybody aware of our continuous efforts for the all-round development of our students as well as school. With that, I invite Dr. Nitin Malik, Registrar, Ambedkar University, to come forward and address our esteemed gathering. Let's give a big round of applause to welcome our chief guest. Jai Shri Gurudev. A very good evening to all of you. Shubh Sandhya. Jai Shri Gurudev. बहुत अच्छा लगता है. It sounds from your ears to directly to your heart when you repeat this word again and again. Jai Shri Gurudev. Because you are in a place, you are in an educational institute. Rather, I would say you are in a mandir, a place of holiness where you have a blessings of these pious people who have embarked their life, their soul, towards making our future better and making the children to grow for a better tomorrow. So we really feel good. The vibes which are coming over here, it has really emphasized, it has come directly to the heart and mind. But before I share my views, my ideas with you, at the outset, I'll say a sorry to all of you because it took me 1 hour 40 minutes. I live on the other side of the Delhi, on the north campus of Delhi University, and it was a big traffic mess. And that is why I could not reach on time and I got late. So please excuse me for coming late to this event. And it is my fault that I should have started early and I missed the initial part of the thing. Anyhow, I could see the young children carrying out making them into the choir they sang, and which has a message for all of us. So starting with the thanks, Mr. Srinivas, who is present amongst us, the principal, the teachers, the students and the proud parents of this educational institute, which I have learned just now that it is a very new institute. अभी बना है ये, अभी चला है ये, और चलते चलते भी अगर इसने ये आयाम हासिल कर लिया है तो सारे यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के मैनेजमेंट को एक बहुत बहुत साधुवाद. आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो पता नहीं ये क्या कहाँ हमें एक दिशा, किस दिशा में हम जाएंगे यहाँ पे और कैसे आगे हम अपने समाज के प्रति इसके अंदर में इसमें वैल्यू एडिशन देते रहेंगे. जो महंत साहब अभी यहाँ पे बोले, मैंने सोचा तो बहुत था कि चलो आज बच्चों के बीच में जाऊँगा तो कुछ बातें करेंगे, कुछ चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि ये वो जनरेशन है जिससे हम सीखते हैं. आई थिंक मैं आता हूँ अभी उस बात पे, पर मैं ये देख रहा था यहाँ पे कि ये वो जनरेशन है जो हमसे भी बहुत आगे है और हमको इनसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है, हमको इनके साथ दौड़ना पड़ता है to cope up with them, to have a understanding what exactly we are leading towards. और महंत साहब ने तो मूल मंत्र ही दे दिया, सारी बात कह दी उन्होंने. वो इतना बड़ा मूल मंत्र देके गए हैं, संवाद, कम्युनिकेशन, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, बात नहीं होगी, तो बात जब तक होगी नहीं तो बात दूर तक कैसे जाएगी. समाज का चरित्र कैसे होगा, समाज का बनना कैसे होगा, हमारी ह्यूमैनिटी और ह्यूमैलिटी विच द प्रिंसिपल मैडम वाज टॉकिंग अबाउट, वो किस तरीके से क्रिएट होगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम उस धारणा पे जाएंगे या उस लक्ष्य पे जाएंगे जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है, विकसित भारत 2047. अभी एक नया आयाम हमको देखना है, हम सब देखेंगे उसको. मैं तो देखूंगा, मैं तो चाहूँगा कि मेरी उम्र इतनी लंबी हो कि मैं 2047 तक जीऊँ और देखूं कि ये भारत, ये जो हमारा भारतवर्ष है, जो उन्होंने महंत जी ने बताया कि ऋषियों का देश है,
मुनियों का देश है। हमारी नॉलेज, जिसको आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर में हम इतना ज़्यादा उसके अंदर में हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उस भारत को कैसे विकसित होते हुए देखूं मैं 2047 के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति, और उसके लिए जो संवाद है उसको मैं कट शॉर्ट करके यहाँ पे 3 भाग में आप लोगों से बात करूँगा। सबसे पहला मेरा जो टारगेट और आज का जो संवाद है वो ये आगे बैठे हुए पंक्ति में जितने लोग हैं, पेरेंट्स, इनसे मेरा संवाद है। हम लोग ये सोचते हैं कि जो ये बच्चा है हमारा, मान साहब जी ने भी हिंट किया, मान जी ने बड़ा अच्छा उसके अंदर में हिंट दिया, हम उसको अपनी रिफ्लेक्शन के अंदर में बनाना भी चाहते हैं और हम उससे ये भी अपेक्षा करते हैं कि जो हम नहीं अचीव कर पाए वो हमारा बच्चा अचीव करे। आप कभी सोचिए, मैं भी बैठ के वहाँ सोच रहा था, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट मी एंड द प्रिंसिपल इज गवाह ऑफ दैट कि व्हेन आई वॉज इन अ स्कूल आई नेवर कुड अचीव टू गो टू द स्टेज। मैं पहुंचा ही नहीं स्टेज पे कभी, क्योंकि मैं उन कामयाब लोगों में से नहीं था जो स्टेज तक जा सकूं, तो मैं तो बैक बेंचर था, ठीक है ना। तो हम में से अधिकतर लोग इस तरीके से हैं। उसके बाद हमने अपने उसी पड़ाव में चलना शुरू किया, 10th तक आए, जो माँ बाप ने समझाया हम भी समझते गए। उन्होंने बोला तुमको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की रेस में दौड़ गए, उन्होंने बोला मेडिकल में डॉक्टर बनना है तो मेडिकल की दौड़ में हम चले गए। और उसके बाद अचीव क्या हुआ, धक्के खाते हुए, झटके खाते हुए, इधर से होते हुए उधर से होते हुए हम चलो डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गए, कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी ले जाती है, एंड वी कैरिड आउट द थिंग्स ओवर देयर। बट व्हाट आई वांट टू गिव, जो मैं इसके अंदर में आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ने भी चाहा था, क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन है वो डॉक्टर है, तो मैं भी डॉक्टर बनूं। बड़ी कोशिश की उन्होंने, बड़े प्रयत्न किए, वो खुद नहीं बन पाए थे तो मुझे बनाने की कोशिश की, मैं भी नहीं बन पाया तो बहुत मार भी खाई, पिटाई भी हुई, लेकिन फिर भी मैं डीठ नहीं बन पाया, नहीं कर पाया। लेकिन देखिए डेस्टिनी कहाँ ले जाती है। मैं ये बूस्ट ऑफ नहीं कर रहा कि मैं कहाँ पहुँच गया या किधर आ गया, बट वन फाइन मॉर्निंग आई फाइंड दैट all medical colleges as a registrar I am controlling over there. When I was in IP यूनिवर्सिटी, जब मैं IP यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, आर्मी मेडिकल कॉलेज, ये सब मेरे अंडर थे, जहां मैं एडमिशन्स कर रहा था और उनका टीचर्स का रिकग्निशन कर रहा था। तो वहां मुझे लगा कि नहीं, अच्छा हुआ मैं डॉक्टर नहीं बना। आई एम नॉट सेइंग दिस कि यहाँ पे जितने डॉक्टर्स बैठे हैं किसी को मैं अनॉय नहीं करना चाह रहा, मैंने वहाँ पे मुझे लगा कि मैं अच्छा हुआ मैं डॉक्टर नहीं बना, क्योंकि मेरे अंदर में उतना वो है ही नहीं कि मैं डॉक्टर के प्रति जिस तरीके से डॉक्टर समाज के प्रति अपनी निष्ठा या कर्तव्य करता उतना मैं दे सकता था, और इसलिए मैं अच्छा हुआ कि मैं डॉक्टर नहीं बना। बट व्हाट द मैसेज आई वांट टू गिव इट टू यू, हम जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के अंदर में हम उसको सब कुछ देखना चाहते हैं, सब कुछ, और उसको फोर्स करते हैं, तू ऐसा चल, तू ये बन, तू वो कर। आई गो फॉर मेनी काउंसलिंग सेशंस, और मैं बड़ा कॉमन एक वर्ड यूज़ करता हूँ। अभी यहाँ पे मैडम दिखा रही थी, प्रिंसिपल मैम दिखा रही थी, 91% आए, उसके 92% आए। तो बच्चा घर में दौड़ दौड़ के जाएगा, मम्मी मेरे 91% आए, तो मम्मी बड़ी खुश, चलो कुछ अच्छा हो जाए। तो पापा आएंगे शाम में, आज बेटी के 91% आए हैं, अच्छा गुड, बट शर्मा जी के बेटे के 94% आए। Never compare your child. Your child is your child. He is separate. He is different. He is not identical with anybody. He is not that person who has to be into the race of competition. उसको कभी इस कॉम्पिटिटिव रेस के अंदर में मत जाने दीजिए, उसको बनने दीजिए, उसको आगे चलने दीजिए, और वो कहीं ना कहीं जरूर कामयाब होगा। मेरी पूर्ण रूप से उसके अंदर में आशा है। हर एक बच्चा अपना भविष्य अपना खुद सुधारता है। आप उसको छोड़ के तो देखिए, बैलून्स का भी उन्होंने उदाहरण दिया, बैलून्स अलग अलग कलर के हैं और उनको अगर आप कहाँ छोड़ेंगे, लेकिन हम छोड़ते नहीं है ना, हम यहाँ से सुन के जाते हैं। पिक्चर देखिए हमने, 3 इडियट्स देखी है ना, हम ही सभी ने, सारे पेरेंट्स ने देखी है 3 इडियट्स। उसमें वो एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है आमिर खान साहब, बड़ा अच्छा डायलॉग है, काबिल बनो कामयाबी झक मार के आपके पीछे। हम सुनते हैं, बड़ी तालियां बजाते हैं, उसके बाद जैसे ही घर जाएंगे उसके बाद अरे तू पढ़ नहीं रहा, अभी पढ़ इसको,
10th के पेपर आ गए, कैसे नहीं कर रहे? प्लीज डोंट डू दैट, लीव देम, बिकॉज दिस जनरेशन इज मच मच अहेड ऑफ अस. दे आर हाईली इंफॉर्मेटिव, बहुत इंफॉर्मेटिव जनरेशन है. ये जितने आगे पेरेंट्स बैठे हैं ना, सच्चाई दिल पे हाथ रख के बोलिए, सबके पास अपडेटेड लेटेस्ट मोबाइल होंगे, सबके पास होंगे. लेकिन अगर आपके मोबाइल में कोई बग आ जाता है ना, तो आप ठीक नहीं कर पाएंगे. करेगा आपका बच्चा ही, क्योंकि वो ज़्यादा हाईली इंफॉर्मेटिव है आपसे. और दूसरी बात भी मैं आपको चेता देता हूँ. लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, ये बच्चे ना सुने इसको प्लीज़. ऑल द चिल्ड्रन दे शुड पुट द हैंड्स इन देयर ईयर्स. ये सुने ना. देयर आर 2 थ्योरीज विच आर कमिंग नाउ. मेरे साथ जितने यहाँ पे जो मेल हैं, जेंट्स हैं, हम लोग जब स्कूटर चलाते थे, हम तो स्कूटर युग वाले हैं ना, कार युग तो अब आया, अब तो सबके पास कारें हैं, सब कुछ, इकोनॉमी इज गोइंग ग्रेट. हम जब स्कूटर चलाते थे तो हमारा बजाज टेढ़ा करके स्टार्ट होता था, सीधा तो स्टार्ट होता ही नहीं था. यू रिमेंबर? वी रिमेंबर ना, वो टेढ़ा होकर स्टार्ट होता था. उसमें उसको हम बोलते थे जुगाड़ टेक्नोलॉजी. शायद हम एयरप्लेन को भी झुका दें तो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा हमारा इंडियंस की जुगाड़ टेक्नोलॉजी है. लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा जुगाड़ होता था, जिसको हार्ड स्किल्स के अंदर में भी हम लोग मानते हैं. मुझे याद है जब मेरा स्कूटर ख़राब होता था, जब मैं स्टूडेंट था या जब मैं अपना यंग एज में करियर स्टार्ट किया था, तो उस स्कूटर के अंदर में कार्बन जम जाता था नीचे साइलेंसर में. तो मैकेनिक के पास ले जाते थे, तो मैकेनिक कहता था लाओ जी अभी ठीक कर देते हैं. तो वो क्या करता था, उसको खोल के उसको गर्म करता था, हीट करता था, उसको डीकार्बनाइज करता था, और वो फट 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 जो आवाज़ थी वो ख़त्म हो जाती थी, वो चल देता था. सो वी आर द पीपल, मैं और मेरे जैसे आप, हम लोग रिपेयर टेक्नोलॉजी के लोग हैं. रिपेयर टेक्नोलॉजी, वी यूज टू बिलीव इन रिपेयर ऑफ द सिस्टम. छोटा छोटा कोई भी चीज़ घर में हो जाता था ना, तो हम उसको जुगाड़ करके ठीक करते थे. ये जो जनरेशन है ना, ये रिप्लेस टेक्नोलॉजी की जनरेशन है. आज आपकी कोई चीज़ खराब होगी तो ये नहीं कहेंगे इसको ठीक कर दो, कहेंगे रिप्लेस इट. तो काइंडली बी अवेयर, you have to be with them, you have to act not as a parent with a rod, you have to be friend with them, you have to learn with them and do not get replaced. अपने को replace मत कीजिएगा लाइफ के अंदर में, अपनी फैमिली के अंदर में. और that is why I tell that जो महंत जी यहाँ बोल के गए, संवाद, कम्युनिकेशन, उसको बहुत बहुत जरूरी आपको करना है, पहली चीज. दूसरी चीज, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा. मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति के पास गया, उनके घर गया, उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया. तो एड्रेस ढूंढते ढूंढते मैं गया, अब एड्रेस के बाहर तो पहुंच गया, लेकिन वहाँ खाली मकान नंबर लिखा था, वहाँ कोई नाम नहीं लिखा था. अब मुझे लगा कि पता नहीं मैं ठीक जगह पे पहुंचा हूँ या मैं ऐसे ही पहुंच गया. तो मैंने उनको फ़ोन किया बाहर से. मैं कहा साहब, मैं आपने मुझे जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस के बाहर खड़ा हूँ, यही आपका मकान है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल यही मकान है, आप अंदर आ जाइए. मैं अंदर चला गया, तो मैंने उनको खाली ऐसे ही समावेश में बोला, मैं कहा साहब बाहर नाम तो लिखवा देते. कहते किसका नाम लिखवा देता? मैं कहा अपना ही लिखवा देते. जनरली हम घर के नाम बाहर अपना नाम लिखते हैं ना, या जो भी हमारा एल्डर पर्सन होता है वो हम लिखते हैं उसके अंदर. उसने बोला ये घर मेरा नहीं है, ये घर हमारा है. हमारा मीन्स जितने यहाँ रहते हैं उन सब का घर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखवाया. तो मेरा आपसे एक दूसरा संदेश है कि संवाद के साथ साथ आपको उस घर के अंदर में हर एक मेंबर को, आपके छोटे बच्चे को से लेके बड़े बुजुर्गों को, सबको एक लेवल में वो, बिकॉज दैट इज़ वेयर वी स्टैंड. हमारी संस्कृति भी यही बोलती है, हमारा कल्चर भी बोलता है कि इट इज़ नॉट आई, it is we, because I denotes the ego, we denotes the collectivity, and then if we have to move forward, we have to go in together. यही इन्होंने आज कितना अच्छा क्वायर था, जिन भी टीचर्स ने इनके साथ आज जो क्वायर बनाया, बहुत बढ़िया संदेश था. आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट दोज टीचर. जिंदगी का सफ़र से लेके कहाँ पे वो ले गए. कॉन्फिडेंस देखा था आपका, छोटे छोटे बच्चे, कॉन्फिडेंस कितने अच्छे से वो गा रहा था. वो जो किशोर कुमार ने किसी टाइम पे उगली उगली किया होगा, वो बच्चा गा रहा था. जस्ट इमेजिन दिस कॉन्फिडेंस दे हैव. सो काइंडली मेक इट इन माइंड. हम लोग जो है ना, अब थोड़े से
बैक स्टेज पे भी आए, लेट देम गो हेड। उनको बोला जाता है ना कि आउट ऑफ बॉक्स सोचने दो, सोचने दो, उड़ने दो, इनको उड़ने दो। आपका कर्तव्य खाली ये है कि इनके ऊपर में ध्यान रखना, अपने आर्म्स को ओपन करके इनके साइड में चलना। हाँ, जहां पे ये डिविएट हो रहे हैं, जहां आपको लगे कि डिविएशन बहुत ज़्यादा है, वहां आपको इनको समझाना नहीं है, इनको बताना है, संवाद करना है कि ये आपके लिए सही है, यहाँ ऐसे चलोगे तो आगे ये रास्ता है। फोर्स मत कीजिए, प्रतिबंध मत दिखाइए उनको, अपने इमेजिनेशंस को उन पे मत ला दिए। ये मेरी आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है। सेकंड, मेरा जो संवाद रहेगा वो है अब टीचर्स से, जो यहाँ की फैकल्टी हैं। और प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि नया स्कूल है। अरे नए लोग तो आयाम लाते हैं, नए लोग ही तो जोश में आते हैं, और नए लोग ही तो कामयाबी दिखाते हैं। तो ये स्कूल जिस तरीके से इतने कम वर्षों में इतने कामयाबी दिखा चुका है, उसके लिए आपको बहुत बहुत सभी को यहाँ पे साधु धन्यवाद। और दूसरी चीज़ जो टीचर्स से मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी, मैंने देखा आप लोगों की जो एनुअल रिपोर्ट हुई उसमें पेडागोजी के ऊपर में बात हुई, उसके ऊपर में कैपेसिटी बिल्डिंग में बात हुई, उसमें स्किल के ऊपर में बात हुई, लेकिन प्रिंसिपल मैम ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा बज़वर्ड था। हम लोग तो, अब मेरे को 33 साल हो गए हायर एजुकेशन में, तो मुझे भी लगा यार ये क्या है, व्हाट इज दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आई एम टॉकिंग टू ऑल द टीचर्स, व्हाट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हम तो पढ़ाते आ रहे हैं भाई, सुबह आते हैं, सारा हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया पढ़ाने में, पूरा जिंदगी हमने लगा दी, और अब हमारे पे ये बोला जा रहा है कि एक नई शिक्षा पद्धति। लेकिन अगर आप देखें, ये 34 साल के बाद जो नई शिक्षा पद्धति आई है, 1986 के बाद जो पद्धति आई है, उसके अंदर में जो मैडम ने वर्ड यूज़ किया इंक्लूजन, उसके अंदर में जो 5 मेन स्तंभ हैं, उसके 5 मेजर पिलर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू ऑल, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी। अब मैं यहाँ रुकता हूँ चौथे पे, क्वालिटी। इसका मतलब आज तक जो हम एजुकेशन सिस्टम में थे, वहाँ हमारे पास क्वालिटी नहीं थी। ऑल द टीचर्स, व्हेन आई गो टू द ऑल द स्कूल्स एंड टू द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे टीचर्स बोलते हैं कि क्या सर आप क्या बात कर रहे हैं, क्या हमारे पास क्वालिटी नहीं थी? थी, लेकिन क्वालिटी के साथ में सबसे बड़ा जो अब आपका पिलर है वो है अकाउंटेबिलिटी। अगर आपकी क्वालिटी अकाउंटेबल नहीं है तो आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर में कहीं स्टैंड नहीं करेंगे। और उसके लिए आपको भी आगे बढ़ के आना पड़ेगा, आपको भी टीचर्स को भी एक लर्नर के रूप में रहना पड़ेगा, आपको भी अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जनरेशन, मैंने बोला ना, दे विल रिप्लेस यू, दे आर रेडी टू रिप्लेस। आप घर में देखिए, आप किसी भी बच्चे से बात कीजिए, मेरे भी घर में 2 बच्चे हैं, वो मेरे तो हर एक कमरे में अलग अलग बंद हो जाते हैं रात में, सबके घर घर की कहानी है, रात भर जागते हैं, सुबह सोते हैं। आई डोंट नो, अभी ये छोटे हैं, अभी तो ये टाइम पे डिसिप्लिन होंगे, आप थोड़ा बड़े होने दीजिए इनको, फिर देखिए। मेरा बेटा मुझे कहता, पापा यू डोंट नो एनीथिंग, जस्ट गो ऑफ, है ना, इट्स माई लाइफ, इट्स माई स्पेस। अरे पापा छोड़ो यार, कर लेंगे यार, मतलब दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज देयर। सो यू हैव टू रन विद देम, यू हैव टू रश विद देम टू कोप अप विद देम। तो टीचर्स को भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, और अभी तो आपने नया पौधा लगाया है, इस पौधे को आपने कल्प वृक्ष बनाना है, और ये कल्प वृक्ष बनेगा क्योंकि आपके साथ, इस संस्था के साथ इतने बड़े बड़े होली पायस हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपके साथ ताकतें हैं, जो आपको एक दिन इसको समाज में कहीं पे खड़ा करेंगे। तो आप कृपया अपने को एक छात्र के रूप में देखिए, नॉट एज अ टीचर, एंड आई विल रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल मैम ऑल्सो टू गिव फ्रीडम टू द टीचर्स। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जब हायरार्की में आ जाते हैं ना, मैं वाइस चांसलर, मैं रजिस्ट्रार, मेरे नीचे 500 लोग काम करते हैं, मेरे नीचे दे मस्ट बी अराउंड 1000 पीपल। तो मैं कहता हूँ नहीं, डूज एंड डोंट्स, लीव देम डू इट। इफ आई डोंट थिंक आउट ऑफ बॉक्स, नोबडी विल थिंक आउट ऑफ बॉक्स। सो फर्स्ट इज आई हु हैव टू चेंज, मेरे को अपने अंदर में चेंज करना है। तीसरा संवाद अब ये सारे बच्चों के साथ, ये छोटे छोटे बच्चे, भाई हम लोग भी हैं, हमसे थोड़ा सा, हम आपके जितने नहीं हैं एनर्जेटिक, लेकिन हमें रिप्लेस मत करना, हमारी भी थोड़ी बहुत ज्ञान है, हम भी ऐसे ही, हमने ठीक है बाल काले किए हुए हैं, लेकिन बाल हमारे भी सफ़ेद हैं धूप के अंदर में। सो यू हैव टू लिसन टू अस,
You have to carry it out and we can be a guiding force to you. लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों को मैं ये बोलता हूँ, कॉम्पिटिटिव रेस में मत पड़ना. आप भी सोचो, क्योंकि अब एजुकेशन खाली नॉलेज नहीं है, आईआईटीज और आईआईएम्स खाली सीमित नहीं है, और भी बहुत सारे काम हैं. श्रीनिवास साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आप पूछिए, he has done, he might have grown up in US and carried out lot of things, but he preferred to came back to India. मैं चाहूँगा श्रीनिवास साहब, क्योंकि मैं भी 1 साल अमेरिका में रहा, उस समय में रहा जब लोग अमेरिका जाने को तरसते थे और सरकार ने मुझे भेज दिया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी. बट व्हेन आई रीच देयर आई सॉ द डिफरेंट साइड ऑफ द थिंग and I thought it is better that I should contribute back to my country rather than be over here. I can learn from them, but I have to make my country grow with a dream that whatsoever I can contribute, I contribute to my own land and to my own people. I would like you also to specify on that, because now he is a big entrepreneur, he is a big person in this country. Big means not financially, please. Not financially. Big means the big contributor to the society, and that is why I salute all the people who come back to their motherland and serve for this land. तो ये जो बच्चे हैं ना, इनको उड़ने दो, छोड़ दो इनको. आप अपने आप करेंगे. आपका खाली काम है उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, अच्छे से अच्छे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, and you will be proud of that कि yes, these are the people and they are growing up into a good society and they are the future of our country. मैंने बोला ना, विकसित भारत 2047 कहाँ से कहाँ पहुँच आए. मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो हमने वो चीज़ें देखी हैं, कूलर से लेके एयर कंडीशन से लेके मोबाइल टेक्नोलॉजी से लेके अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोग भी करते होंगे उसको, आप लोग भी देखते होंगे. तो बच्चों के लिए खाली मैं एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि परों को खोल, अपने विंग्स को ओपन करो. सारे बच्चों सुन लो इसको, परों को खोलो. जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है. यू हैव टू स्केल द स्काई and the sky is the limit. With all this word, I once again congratulate this school, this young school who has set an ideal example. And I am sure under the leadership of the principal Meenakshi Khurana, because I have seen her in Delhi Public School also. So under her leadership and under the leadership of the Jai Shri Gurudev and the managing trust, this school is going to set an example, a great contributor to the society, not only into the era of knowledge, but into the contribution towards humanity, and preserving our cultural tradition, for which we all are proud of us. Thank you very much.